Hello everyone, for 11th standard account commerce section we are doing our series is going on topic depreciation. Today we are going to solve question number 10 from question number 1 to 9. We had already completed our series. Please check the I button and below description. All previous video links are there. So student, please go through all the sums. Then only you can come to know the depreciation, especially the introduction video. From that you can bifurcate. There are two methods. Today we are going to solve second method, written down value method. Earlier we had completed straight line method. Question number 1 to 6. Check the I button from 1 to 6 for SLM method, and from 7 to 8 and 9 and 10. Today we are going to solve 10 sum which is under WDV method. So let's begin with our question number 10 under WDV method. Question number 10 says that Radhika Masle Amravati purchased plant. Our asset name is plant. Sometimes they use plant, machinery, furniture, computer. So you have to understand, because we have to prepare a ledger. So over a ledger we have to give the name plant. Now this plant was purchased on 1st Jan 15 for 80,000. A new plant was also purchased for rupees 60,000. Installation expense 10,000 on 1st April 16. So student, over here the first assets is on 1st Jan 15, plant 1. Then the new plant, that means plant 2, is on 1st April 16. Over here the plant 2 we have purchased for 60,000 and we had spent our nominal expenditure 10,000. So that's why our new plant we have to consider as a 70,000, not 60,000. Because any nominal expenditure occur while purchasing the fixed asset, we have to consider that nominal expenditure as a fixed asset only. So student, our plant 2 we have to consider as 70,000. So please remember this, and the date of purchase is 1st April 16. And on 1st Jan 17 a new plant was purchased for 20,000 by disposing of plant 1 for 60,000. So we had purchasing our third assets on 1st Jan 17, and on the same date, that means on 1st Jan 17 we have to dispose, yani we have to sold the plant first. Plant first means this 80,000 and the selling price is 60,000. So selling price is given, that means we have to find out the profit and loss. That we will do in our working note part. So further he is saying that prepare plant and depreciation account for 31st March 15, 16, 17, that means 3 years. Assuming the rate of depreciation is 10% under diminishing balance method, WDV method, diminishing balance method, or written down value method. So that means our depreciation amount is going to reduce every year. So this is the difference between SLM method and WDV method. In straight line method, the depreciation amount will remain same for every year, and in diminishing balance method, depreciation amount is going to reduce every year. That means we have to calculate depreciation on the balance amount. So we get the idea of the question. So let's begin with our working note. So first we will see the date. So for date we will draw a line. Our date is 1st Jan 15. That means your financial year is April 14 to 31st March 15. In this we had purchased our asset number 1 on 1st Jan 15. Somewhere here beta. So 1st Jan 15 we had purchased plant number 1 for 80,000. Now this purchase is on 1st Jan. That means we are using the asset for the first year for only for 3 months, January, February, March. So we have to calculate the depreciation for first year only for 3 months. At the year end on 31st March we have to calculate depreciation, but it is going for 3 months. So remember this thing. Then we have to see our asset number 2, that is for 70,000, 1st April 16. So 1st April 16 is not coming over here. So we will go to our next year, second year. The second year beginning, opening date will be 1st April 15 and ends on 31st March 16. Now we will check the date, 1st April 16. This is also not coming in our second year. That means nothing has happened in the second year, student. So simply we will write the balance of assets number 1, because we had provided depreciation in the first year, and we will get some balance. That will be the opening balance for the second year.
Now in the second year nothing has happened. That means first asset number 1 का opening balance will consider till the last date of 31st March. That means we are using for 12 months, and 12 months we have to calculate a depreciation at the year end. Then we will draw the third line. Third line yani opening date will be 1st April 16 and closing date will be 31st March 17. Again we will check the date. Now the date is 1st April 16 for asset number 2. April 16 is coming over here. That means the third year we had purchased our asset number 2. यानी opening balance भी रहेगा और asset number 2 भी रहेगा, and it is going to use for whole year. That means we have to calculate depreciation for 12 months. Then again the next date is 1st Jan 17. 1st Jan 17 again इसके अंदर ही आ रहा है. In between we are getting the date 1st Jan 17. यहाँ कहीं आएगा. तो 1st Jan 17 को क्या हुआ? We had to sold as well as we have to purchase asset number 3 for 20,000, and we have to sold our asset number 1 60,000 on the same date. तो 1st Jan 17 को दो एंट्री हुई. पहले परचेज किया हमने 20,000 का, और इसका इनिशियल डेट जैन है, यानी इसको यूज कितना किया थर्ड ईयर में आपने बच्चों? 3 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ. Then on the same date we are selling, disposing means that we are selling the assets number 1, that is 80,000. For how much we are selling? We are selling for 60,000. And now just write the information that we are selling asset number 1. We are selling this asset on 1st Jan. That means we are going to use the asset in my third year for 9 months. So calculate the date from 1st Jan, because we have opening balance over here for April to Jan. Calculate Jan तो नहीं आएगा. We have to end at the month of December only. तो April, May, June, July, August, September, October, November, December. So it will come 9 months. So we have to calculate depreciation, then we have to sold, and then we have to find out the profit or loss. ठीक है? तो hope so date and amount is clear. तो कौन से एसेट पे कितने महीने का डेप्रिशिएशन आएगा. अब चलते हैं हमारा ओरिजिनल वर्किंग नोट की तरफ. प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, टोटल डेप्रिशिएशन. टोटल डेप्रिशिएशन इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बिकॉज हम जब लेजर बनाएंगे एट दैट टाइम वी विल यूज द अमाउंट फ्रॉम टोटल डेप्रिशिएशन कॉलम. सो वी आर प्रिपेयरिंग दिस वर्किंग नोट ओनली फॉर दिस टोटल डेप्रिशिएशन कॉलम. ठीक है? So working note we will start from the date. First asset is 1st Jan, second asset is 1st April, and third asset is 1st January 17. So just put a date for Jan 15 for first asset, 1st April 16 for asset 2, and 1st Jan 17 for asset number 3. So we will start from the year wise. So first year we have only one assets. So assets number 1, 1st January 15. 80,000. The cost is 80,000. We are using this assets for only for 3 months. So that means we have to calculate depreciation for 3 months. What is the rate of depreciation? 10% per annum under DBM method. तो 80,000 के ऊपर 31st March 15 को आएगा. 80,000 के ऊपर 10% for 3 months. It comes to 2,000. And in first year nothing has happened. That means we have to write the total of depreciation is 2,000. तो ये ledger important है हमारे लिए. Now we will do the balance. Balance is 78,000 for the 1st April 15. That means opening balance for the second year. Now in second year nothing has happened. So directly we will calculate the depreciation 31st March 16. Now we will calculate depreciation on balance. Balance is from 1st April to March. That means for whole year. So 10% depreciation, very simple, just hide 1 0, that comes to 7,800. Again nothing has happened, so our total depreciation for second year is also 7,800. Then we will find the WDV balance. My balance for the third year is 70,200. Now in third year we had purchased asset number 2 as well as asset number 3. Asset number 2 is on 1st April 16, the cost is 70,000, remember this thing. एंड एसेट नंबर 3 का अमाउंट दिया है 20,000, तो 20,000 लिख दे. अब डेप्रिशिएशन निकालना है. अब डेप्रिशिएशन जब हम निकालते हैं यहाँ पे, तो वी हैव टू सी कि एसेट नंबर 1 यहाँ पे फर्स्ट ईयर में सोल्ड हुआ था, तो इसके लिए अलग वर्किंग नोट बनेगा. तो एसेट नंबर 1 पे आप डैश मार दे 31st March 17 को, और सिंपली प्लांट 2, प्लांट 3 पे डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करें. प्लांट 2
यानी देखो यहाँ पे प्लांट 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, यानी 12 महीने का डेप्रीशिएशन। 12 महीने का डेप्रीशिएशन सिंपल है, 1 0 कम कर दो 10% के लिए तो 7000 आया। मगर बच्चों एसेट नंबर 3 महीने का डेप्रीशिएशन है, तो 20,000 पे 10% फॉर 3 मंथ। तो कैलकुलेशन समझे इसको, यहाँ पे 20,000 10% फॉर 3 मंथ कम्स टू 500 एंड माई टोटल डेप्रीशिएशन फॉर थर्ड ईयर इज 7,500। then nothing is there, तो we will find the balance 63,19,500 is okay। now हमारा मेन पार्ट तो ये हो गया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि एसेट नंबर 1 पे प्रॉफिट है या लॉस है, उसके लिए हम वर्किंग नोट 2 बना लेंगे। हमारा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 1 वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 16, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू है 70,200, बट हम इसको यहां सोल्ड नहीं कर रहे, वी आर सेलिंग ऑन 1 जनवरी, दैट मीन्स वी आर यूजिंग फॉर 9 मंथ। और यूज वर्ड आता है डेप्रीशिएशन में, वी हैव टू प्रोवाइड डेप्रीसिएशन फॉर 9 मंथ। सो ऑन दिस 70,200, इसको हमेशा याद रखें WDV मेथड कर रहे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस, यानी बैलेंस के ऊपर डेप्रीसिएशन निकालना है। तो ये चीज भी यहाँ एप्लीकेबल होती है कि 70,200 पे आपको 10% निकालना है, बट ओनली फॉर 9 मंथ। तो कैलकुलेशन है 70,000 10% फॉर 9 मंथ, इट कम्स टू 5265। सो डेप्रीशिएशन ऑन 1 Jan 17 इज 5265। अब इसको WDV निकाल लेते हैं, बैलेंस निकालते हैं 64,935। ये जो कीमत आई है, द वैल्यू इज 64,935 इज ऑन द डेट ऑफ Jan। तो जिस दिन हम एसेट्स बेच रहे हैं उस दिन उसकी कीमत है 64,935, कॉस्ट मिल गया हमको। अब ये देखेंगे सेलिंग प्राइस क्या था बच्चों, 60,000। तो 60,000 हम क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो यहां से आपको अभी आइडिया लगाना है कि ये प्रॉफिट है लॉस है। कॉस्ट 64 है, सेलिंग प्राइस 60 है, तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस कम हो गया यानी लॉस हो गया। तो माइनस करेंगे तो आपका लॉस फिगर आया 4935। तो इस तरह से ये वर्किंग नोट भी कंप्लीट हुआ। इस वर्किंग नोट से 3 एंट्री आएगी, डेप्रीशिएशन, सेल्स और लॉस, और तीनों क्रेडिट में जाएगी। ईयर वाइज एंट्री पास करना है। तो ये वर्किंग नोट और प्रॉफिट और लॉस का वर्किंग नोट लेके चलते हैं हमारे लेजर की तरफ। तो बच्चों ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको डेट और डेप्रीशिएशन वगैरह क्लियर आइडिया आता है। सो मेक अ हैबिट टू ड्रॉ दिस लाइन एंड फाइंड आउट द डेट एंड फाइंड आउट द मंथ, हाउ मेनी मंथ वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्रीशिएशन। सो चलते हैं अभी लेजर की तरफ बच्चों। तो डेबिट क्रेडिट है, प्लांट अकाउंट है हमारा। डेट वाइज शुरू करेंगे। फर्स्ट ईयर पहला एसेट्स आ रहा है 80,000 का, जैन में आ रहा है, डेट याद रखे। ये वर्किंग नोट बनाए तो अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं, सब यहीं से कॉपी पेस्ट करेंगे हम लोग। 1 Jan 15 एसेट्स आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन टू बैंक अकाउंट फॉर 80,000। और फर्स्ट ईयर में और कोई एंड परचेज नहीं है, तो डायरेक्टली वी हैव टू प्रोवाइड डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन ऑलवेज ऑन क्रेडिट साइड। 31 मार्च 15 2000, ये टोटल लिखना आपको। तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं। 80,000 बड़ा है, दोनों साइड लिखते हैं। 80 में से 2 माइनस किए तो 78 बैलेंस आया। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, तो सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस। मार्च के बाद अप्रैल आ गया। साल चेंज नहीं हो रहा है, मार्च अप्रैल में साल चेंज नहीं होता। आप कैलेंडर में चेक करें, साल कब चेंज होता है, जनवरी और दिसंबर में। तो साल वही रहेगा। और मार्च के बाद अप्रैल आ गया। 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये कैरी डाउन है तो ये ब्रॉड डाउन हो गया। नाउ वी आर इन द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, परचेज वगैरह नहीं है, तो आप डायरेक्टली डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करेंगे 31 मार्च 16 को, और डेप्रीशिएशन हमेशा क्रेडिट में आएगा 78। तो वर्किंग नोट ये इसलिए हेल्पफुल है हमारा। तो आपको टोटल लिख लेना डायरेक्टली। अब इसको भी क्लोज करते हैं। 78 दोनों साइड बड़ा है, इससे 7,800 माइनस करें तो बैलेंस आया 70,200। तो सेकेंड ईयर का क्लोजिंग, थर्ड ईयर का ओपनिंग। 2016 ही रहेगा साल। बहुत से बच्चे साल बदल देते हैं, भाई साल चेंज हो रहा है, साल चेंज हो रहा है, कैलेंडर के हिसाब से चेक करें, साल चेंज नहीं हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर मार्च टू अप्रैल चेंज होता है, तो इसको जहन में रखें। तो ओपनिंग बैलेंस आ गया थर्ड ईयर में। अब थर्ड ईयर में 2 एसेट्स आए थे, एक अप्रैल 16 को आया था और एक 1 Jan 17 को आया था। पहला एसेट्स अप्रैल 16 को आया, एसेट्स आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन टू बैंक अकाउंट, एसेट नंबर 2 70,000। और फिर एसेट नंबर 3 भी इसी साल आया, एसेट्स आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मगर ये जनवरी 17 में आ रहा है। अब साल शिफ्ट हो रहा है तो आप 2017 लिखे, फिर Jan 1 लिखे टू बैंक अकाउंट, एसेट नंबर 3 20,000। फिर जनवरी के अंदर और एक हुआ था हमारा ये प्रॉफिट और लॉस की एंट्री, ये पास भी करनी है, उसके बाद डेप्रीशिएशन करना, इसको याद रखें।
तो डेट वाइज जाना है आपको। सो प्रॉफिट और लॉस की 3 एंट्री है, पहले डेप्रीशिएशन, फिर सेल्स, फिर लॉस, और तीनों मैंने बोला था क्रेडिट में आएगा। तो पहले डेप्रीशिएशन पास करते हैं, डेट याद रखें जनवरी 17 5265, सेम डेट पे सेल्स करेंगे 60,000 का, परचेज डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, बैंक ही लिखना है आपको मगर क्रेडिट में लिखना है। एंड द लास्ट वन इज लॉस, तो लॉस भी क्रेडिट में आएगा, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 14935। 3 एंट्री होगी बच्चों। अब चलते हैं वापस से वर्किंग नोट में। अब डेट आता है 31 मार्च 17 को, क्या प्रोवाइड करना है हमें, डेप्रीसिएशन, और डेप्रीशिएशन हमेशा आता है क्रेडिट में आता है, तो बाय डेप्रीशिएशन 7500। अब और कोई एंट्री नहीं, इसको बंद कर देते हैं, प्लस करते हैं डेबिट को 160,200, माइनस करेंगे ये चारों एंट्री को, प्लस करके 160,200 से माइनस करो, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस है 82,500। और थर्ड ईयर का क्लोजिंग है तो फोर्थ ईयर में ओपनिंग करके यहाँ हमारा सम कंप्लीट होता है। ठीक है, देखो थर्ड ईयर का जो क्लोजिंग, ये अल्टीमेट आंसर है हमारा। अभी आपने जो वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग, हमेशा लास्ट में जो बैलेंस आता है, ये कॉलम जो लास्ट का रहता है, ये कॉलम अगर आप प्लस करोगे, ये हमेशा इससे ही मैच करेगा। आप प्रीवियस वीडियो भी चेक कर लें, तो जब भी WDV, ये जो वर्किंग नोट का जो क्लोजिंग रहता है WDV वाला, अगर आप ये प्लस करोगे तो इट विल बी 82,500। तो यानी हमारा सम अभी तक परफेक्ट चला, सही है। तो सम चेक करने का तरीका ये बच्चों कि आप प्लस कर लें, WDV का जो लास्ट का लाइन रहेगा प्लस करें, और आपका जो अकाउंट में लास्ट बैलेंस आए वो दोनों सेम होना चाहिए। तो आप 63,19,500 को प्लस करेंगे, इट विल बी 82,500 ओनली। तो होप सो लेजर समझ में आ रहेगा। अब इसी लेजर के बेस पे हम डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाएंगे, इसी के नीचे ड्रॉ करना है। तो मैं तो साइड में ड्रॉ किया, आप इसी के लेजर के नीचे ड्रॉ करें डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेप्रीशिएशन अकाउंट बहुत सिंपल है, कॉपी पेस्ट करना है, ईयर वाइज चलना है आपको। तो पहले फर्स्ट ईयर में देखेंगे डेप्रीशिएशन है, क्रेडिट साइड है, यहाँ क्रेडिट है तो डेप्रीशिएशन अकाउंट में डेबिट, डेट सेम, अमाउंट सेम। ठीक है, खाली यहाँ पर्टिकुलर में आपको अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है। तो जैसे यहाँ आपने डेप्रीशिएशन लिखा था, तो अब जब यहाँ आ रहे हैं तो फिर आप क्या लिखेंगे, प्लांट अकाउंट लिखेंगे। और कोई एंट्रियां नहीं रहती इसके अंदर, तो एक ही एंट्री आती है डेप्रीशिएशन वाली, तो इसको क्लोज कर सकते हैं आप। डेबिट ही बड़ा है, क्रेडिट में 0 है, तो 2000 बोथ द साइड। और बैलेंसिंग फिगर ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईयर एंड, फर्स्ट ईयर का ईयर एंड क्या था, 31 मार्च 15, और बैलेंस को नाम हमेशा देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। और ये टैली हो गया, तो नो कैरिड डाउन, नो ब्रॉट डाउन, इसको खत्म करें। अब नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 पे भी एक ही डेप्रीशिएशन है, क्रेडिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे डेबिट साइड पास करना है आपको, अपोजिट साइड, डेट सेम, अमाउंट सेम। और सेकेंड ईयर में ये भी कुछ नहीं है, तो इसको भी बंद करते हैं, 7,800, बैलेंस भी वही रहा, और बैलेंस ऑलवेज एट द एंड ऑफ द ईयर बाय P&L अकाउंट। ठीक है, अब आ रहे थर्ड ईयर में। अब थर्ड ईयर आप बच्चों चेक करें, इसके अंदर 2 बार आपने डेप्रीशिएशन लिखा है, तो कोई इशू नहीं है, तो 2 बार है तो आप भी 2 बार लिखेंगे। यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट, पहला है Jan 31 17 को 5265, यहाँ क्रेडिट तो यहाँ डेबिट कर दे, डेट सेम, अमाउंट सेम। अगला डेप्रीशिएशन आता है मार्च को, आ रहा है 17 ही रहा, 7,500। ठीक है, हो गया। अब क्या, 2 डेप्रीशिएशन लिख दिए, अब क्या, अब क्लोज कर दो, सिंपल है। तो आपका डेबिट साइड ही बड़ा है, 12,765 बैलेंसिंग फिगर। अब ये लिखते टाइम टेंशन नहीं लेने का, अब माइंड में ये चलता है कि प्लांट के सामने P&L है, प्लांट के सामने P&L है, तो यहाँ पे तो 2 प्लांट है तो 2 बार P&L नहीं बच्चों। मैंने अभी स्टार्टिंग में इसलिए स्ट्रेस देता हूँ, दिस इज बैलेंस एंड बैलेंस ऑलवेज एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एंड के टाइम ही आएगा ये बच्चों। तो आपको टोटल डायरेक्ट लिखना है, यही टोटल लिखना है। तो बैलेंस लिख लेते हैं, बैलेंस यही रहने वाला बच्चों, हमेशा इसको याद रखें, यहाँ पे रॉन्ग नहीं करना, आपको टोटल लिखना है। दिस इज बैलेंस, बैलेंस ऑलवेज टोटल रहेगा आपका, और साल के आखिरी में ही लिखना है आपको, इन बिटवीन आप नहीं लिख सकते। तो होप सो आपको सम समझ में आ रहेगा। वर्किंग नोट, डेट, लाइन वगैरह अच्छे से ड्रॉ करें, प्रैक्टिस करें इसको, तो ही इजीली समझ में आएगा। आप वीडियो कितना भी देखेंगे, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको सम समझ में नहीं आएगा। So please do the practice in your notebook, take the question, take the help from the video. It is only help to you student. आपको अगर सीखना है तो आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये आपके लिए खाली सपोर्टिंग पार्ट है वीडियो हमारा। आपको किस तरह करना है, कहीं डाउट हुआ तो आप वीडियो देख के सॉल्व कर सकते हैं, मगर खाली वीडियो देखना, प्रैक्टिस नहीं करना तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज डू द प्रैक्टिस। होप सो क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।
Thank you for watching the video. God bless you.